وہ جو لاعلاجوں کو علاج دیتا ہے، وہ جو بھوکوں کو اناج دیتا ہے، وہ جو غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے، وہ جسے کل مانگے وہ آج دیتا ہے، جو تیرے اور میرے گیتوں کو ساز دیتا ہے، پرستش کرنے کے لیے ہمیں آواز دیتا ہے، پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، شاگردوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، چڑیا سے مروا باز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ بھی قبر سے نکل آئے جب سن اس کی آواز لیتا ہے، وہ جو حاکم الحاکمین، وہ جو سلطان السلاطین، وہ جو عارف العارفین، وہ جو انبیاء مرسلین، وہ جو قدوس قدیم شاہ عظیم رب العالمین یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو حل مشکلات ہے، قدرت معجزات ہے، مالک کائنات ہے، بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، وہ یہوہ قدوس عظیم پاک خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے، وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جس نے ہر ایک دکھ ہماری خاطر جڑا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے، ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے، وہی فرماتا ہے ایمان رکھو جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں اکٹھے ہو وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود کھڑا ہے، اور جو تمہارے درمیان موجود کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک روح القدس سے تمہیں بھرا ہے، وہ جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے، وہ جو طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، وہ جو شیطانی زنجیروں کو توڑتا ہے، ابلیس بھی جس کا نام سن کر دوڑتا ہے، وہ عجیب موشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جو خداوند ہنوک کا خدا، نوح کا خدا، ابراہیم اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے، وہ جو موسیٰ ہارون یشوع کا خدا ہے، وہ جو شمشون سیموئیل داؤد سلیمان کا خدا ہے، وہ جو ایلیاہ عیسیٰ یسایہ یرمیہ حزقییل دانیل ہوشع یوئیل عاموس عبدیہ یونان میکا نحوم حبقوق صفنیہ حجی زکریا ملاکی کا خدا ہے، وہ جو تمام تر پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے، وہ جو متی مرکز لوکا یوحنا پطرس رسول پالوس رسول سیلاس رسول حلفی کا برتلمائی کا یہودا کا یعقوب کا تیتی کا توما کا فیلپس کا اندریاس کا یوحنا عارف کا خدا ہے، وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے، وہ جو آسمان سورج چاند ستاروں فضاؤں ہواؤں کہکشاؤں پہاڑوں چٹانوں چوٹیوں چشموں دریاؤں سمندروں زمین اور زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پتھری سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے، یسوع آسمان زمین نبیوں رسولوں فرشتوں سمیت تمام تر مخلوقات کا خدا نبوت ہے، یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک برگزیدہ اور ایماندار جس کا منتظر ہے اور رہے گا، ابراہم بھی اس کے دلوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا، یسوع ہے، یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، یسوع جلال حشمت حکمت قدرت طاقت تمجید تعریف پرستش بندگی عبادت بزرگی اور سجدوں کے لائق ہے، دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسوع کی قدرت اختیار اور عظمت بھاری جلال کو توڑ سکے، دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو یسوع کی محبت رحم کرم ترس اور فضل کی حدوں کو ماپ سکے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو یسوع کے ذہن ارادے سوچوں اور خیالوں کو پرکھ سکے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یسوع پر گناہ ثابت کر سکے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ گناہگاروں کو نجات دہندہ ہے، وہ لسانی ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا، وہ کمزوروں کی طاقت، وہ غریب یتیم مسکین بیوہ کے حق کا محافظ ہے، وہ تو آزمائش میں پھنسے ہوئے لوگوں کا مستحق مددگار ہے، وہ تو آگ کی بھٹی میں عیسیٰ کی صورت ایمانی اتر جاتا اور بچا لیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو چلنا دیتا، گونگے بہروں کو بولنے اور سننے کی طاقت دیتا، مفلوجوں کو بحال کرتا، کوڑیوں کو پاک کرتا، مردوں کو زندہ کرتا، وہ کہے تو پانی میں بن جاتا ہے، اس کی ایک جھلکی سے سمندر ساکن ہو جاتے، وہ حکم صادر کر دے تو درخت اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، وہ ہاتھ بڑھائے تو آندھیاں اور طوفان سب اپنے شورگل میں تھم جاتے، وہ آسمان کی پیمائش اپنے بالشت سے کرتا، وہ پہاڑوں کو پنگڑے میں تولتا، وہ ریت کو مٹھی میں بند کرتا، وہ گناہگاروں کو معاف کرتا، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا، وہ حکمت کا چشمہ، وہ نجات کا دروازہ، وہ زندگی کی روٹی، وہ زندگی کا پانی، وہ دنیا کا عدل نور، وہ راہ کو زندگی ہے، وہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ یہ کائنات اور کائنات کا
जर्रा जर्रा उसके बगैर कायम नहीं हो सकता। फकी और फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पैंतोस और पिलातुस हेरोदिस उसमें जुर्म न पा सके, मौत और कब्र उस पर फतह न पा सकी, इब्लीस उस पर गालिब न रह सका, बल्कि आका मनोजी खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी में मौत पर भी फतह पाई, कब्र पर भी फतह पाई और इब्लीस के सारे कामों को निश्चय नबूद करके उसके सर को कुचला और कुचलने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा और जी उठने के बाद वो हुक्म सादर करता है, वो फरमाता है, वो कहता है कि देख मैं मर गया था अब मैं जिंदा हूँ और अब दिल बाद तक जिंदा रहूंगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मौत और अमर की कुंजियां मेरे पास है। वो फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम की माफी देने के लिए अजर मेरे पास है। अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं, मेरे का अच्छा चल रहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अंगूर काटी की वक्त मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, हिकमत का चश्मा मैं हूं, निजात का दरवाजा मैं हूं, दाऊद की असल और नस्ल मैं हूं, सुबह का रोशन सितारा मैं हूं। और जब मूसा से झाड़ू में कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, उसी के जिंदा न करके जलानी न शानी न फानी न तब्दील न मुतबद्दिल ज़ुबदरते सबसे अजीम सबसे आला सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत यीशु नाम में आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा अकीदत भरा खलूस भरा सलाम कबूल हो। हालेलुया हालेलुया। अक्सर औकात कई बहन भाई मुझे कहते हैं भाई जी तुझे सलाम बड़ा लंबा कर दे, तो मैं कहता हूँ सलाम तो छोटा सा होता है, सलाम भरा ये होता है सलाम। मैं तो अपने आका की शान अक़दस को बयान करने की कोशिश करता हूँ, मगर याद रहे दुनिया की ज़ुबानों में, दुनिया की ज़ुबानों में, आलमों के ज़हनों में, प्रोफेसरों की किताबों में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जो मेरे आका की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके। हालेलुया। मेरे आका की शान कोई बयान नहीं कर सकता, मेरे आका की शान बयान से भाई है। तो मैं ही मान रखता हूँ आज के कलाम अक़दस की वसीला से आप सब और मैं बरकत पाएंगे। आमीन। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कलाम इमरान मंजूर सुनाने को है, नो नो नो, बल्कि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान मंजूर जिस हस्ती का कलाम सुनाने को है, ये वो हस्ती है जो कमजोर हड्डियों को जोरावर कर देती है। हालेलुया। आमीन। तो आइए बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे शुक्रगुजारी के तल्लक से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16, 17 और 18वीं आयत। शुक्रगुजारी के तल्लक से हम देखेंगे, और मैं अक्सर एक बात करता हूं कि कोई इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता, कोई इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता। आप भी इंसान, मैं भी इंसान। कोई इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक रूह कुद्दस ना सिखाए। हमारा उस्ताद जो है ना असल में वो खुदा का पाक रूह कुद्दस है। हालेलुया। तो कोई इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक रूह कुद्दस ना सिखाए। बात तो दिल को वही अच्छी लगती है जो कलाम मुकद्दस के अंदर से है। आमीन। तो आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम देखेंगे, कोई भी खुदा का खादम जो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हो वो प्लीज़ ज़रूर करें। पहला थिस्सलुनीकियों और इसका 5वां बाब और इसकी 16, 17 और 18वीं छोटी छोटी आयत है। शुक्रगुजारी के तल्लक से आज हम देखेंगे और सीखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ेंगे।
जी गौर से सुनिए, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बचाओ, नबूवतों की हकारत ना करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। तो हमने सुना बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा, हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ किया करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी है। तो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे, जैसा कि खुदा के बंदा भाई सलीम ने अपने घर में अपने अहले इलाका को, अहले कलीसिया को, अहले खानदान को, ताकि खादमों को इकट्ठा किया ताकि मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी किया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुकद्दस शमूएल नबी फरमाते हैं, खुदा देख मैं कौमों में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। और मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं, आई हैव टू ग्रेट थैंकफुल इन द ग्रेट असेंबली, कि खुदा देख मैं बड़े मजमा में तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करूंगा। मुकद्दस दाऊद नबी का ये कहना है कि मैं बड़ा मजमा इकट्ठा करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। हम अपने अपने घर के अंदर बैठकर खुदा की बहुत सारी शुक्रगुजारी करते हैं, अकेले बैठकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, रास्ते में सफर में जाते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहनें अक्सर औकात अपने घर में काम काज करते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन वाश करते हुए वो खुदा की शुक्रगुजारी करती है। लेकिन यहाँ पर खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद नबी कहते हैं कि खुदावंद मैं बड़े मजमा में तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करूं। और ये वो बड़ा मजमा है जैसा आज भाई सलीम ने अपने खानदान के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर मजमा, मुकद्दस मजमा इकट्ठा किया। उन्होंने अपने बहन भाइयों को कॉल्स की, कलीसिया को बताया, खुदा के खादमों को इनविटेशन दिया कि आप आए और हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। वजह कि खुदा ने उनको उनकी बीमारी से रिलीफ किया। और थोड़ी देर पहले बहन मुझे बता रही थी कि आज उनके बेटे का बर्थडे भी है, इस बात के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और एक भाई के यहाँ बेटी भी पैदा हुई है, 2 दिन पहले, कल हुई है, तो इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारी शुक्रगुजारियां यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। हालेलुया। एक इबादत में हम बहुत सारी खुदा की शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है हम गुजरान रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कितनी बातों में शुक्रगुजारी करनी है। हाँ जी, कितनी बातों में शुक्रगुजारी करनी है? हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। 2 बातों में नहीं, 4 बातों में नहीं, 5, 10 बातों में नहीं, 1000 बातों में नहीं, लाख बातों में नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, तुम्हारी मिन्नतें, मुनाजातें, तुम्हारी समायतें, तुम्हारी दरख्वास्तें, ये सब क्या की जाए? शुक्रगुजारियों के साथ पेश की जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा की हजूरी में जब बैठते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी दरख्वास्तें रखना शुरू कर देते हैं। खुदावंदा मैं तेरी मिन्नत करना, मेरे पुत्र को तंदुरुस्ती दे दे, मेरे बेटे ने जॉब दे दे, इन्हों की स्टडी दे। और शुक्रगुजारी कहाँ है पता ही नहीं कि खुदा ने जो कुछ दिया हुआ है क्या हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम्हारी मिन्नतें, मुनाजातें, तुम्हारी दरख्वास्तें, तुम्हारी समायतें, ये सब शुक्रगुजारियों के साथ पेश की जाए। यानी कि सबसे पहले आपकी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर पहुंचनी चाहिए। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें, और जो कुछ नहीं दिया उसके लिए भी ईमान के साथ शुक्रगुजारी करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने के साथ बेदार रहो। इसका मतलब ये, बेदारी का मतलब ये है कि शुक्रगुजारी करने के साथ बेदार रहो कि जब हम ये शुक्रगुजारी करते हैं ना कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये बोतल मेरे पास नहीं है, लेकिन हम खुदा से कहते हैं, खुदावंद हम ईमान से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बोतल मेरे पास है। हालेलुया। ये वो शुक्रगुजारी है जो लिखा है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने के साथ बेदार रहो, यानी कि जागते रहो कि जो कुछ नहीं भी है उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी।
आप अपनी सेहत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने घराने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपनी जॉब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने घराने के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपने बच्चों की स्टडी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। यानी कि बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। हर वक्त हमें ये कहना चाहिए कि खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ आपने हमें बख्शा उसके लिए भी और जो कुछ नहीं दिया उसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। अगर आप ज़बूर 136 पढ़े तो उसके अंदर जो खुदा ने कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को जो तख्लीक किया है उसके अंदर सारा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। वड्डे वड्डे जो काम करदा आसमान बनाया, जमीन बनाई, पानी देते जमीन रखी, यानी कि हर एक बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आसमान भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और वो कहते हैं खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आसमान में बुलंदियों पर मुकाम दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और सितारे कहते हैं खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि ये आसमान बेरौनक था, जब तूने हमें आसमान पर जड़ा तो आसमान की रौनक दुबाला होगी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सूरज कहता है खुदा मैं भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तूने मुझे दिन पर हुक्मरान किया है ताकि मैं दिन के वक्त तेरे लोगों को रोशनी दे सकूं, ताकि मैं दिन के वक्त तेरे लोगों को गरमाई दे सकूं। सूरज खुदा की शुक्रगुजारी करता है, चांद खुदा की शुक्रगुजारी करता है, वो कहता है खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तूने रात के तहत मुझे ठंडी रोशनी दी ताकि मैं तेरे लोगों को ठंडक दे सकूं, ठंडी रोशनी दे सकूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आसमान के अंदर से निकलते हुए बादल खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बादल के अंदर से निकलते हुए बारिश खुदा की शुक्रगुजारी करती है, बारिश के अंदर से निकलते हुए कतरे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, कतरों के अंदर से निकलते हुए एक एक बूंद खुदा की शुक्रगुजारी करती है। नबातात खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हशरात खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जमादात खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा मेरे आका की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम इंसान क्यों ना खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम इंसान क्यों ना खुदा की शुक्रगुजारी करें, जबकि फूल अपनी खुशबू के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और वह कहते हैं खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इन फूलों के अंदर खुदा तूने महक रखी है, खुशबू रखी है। जब तेरे लोग हमें तोड़ते हैं तो हमारी खुशबू से वो शेरशुदा होते हैं। फल खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने हमारे अंदर ताकतें रखी है, विटामिन रखे हैं। जब तेरे लोग तेरी मखलूक हमें खाते और पीते हैं तो लोग ताकत तवानाई हासिल करते हैं। यानी कि खुदा ने जो कुछ रोज जमीन पर हम इंसानों के लिए पैदा किया है हर एक चीज खुदा की शुक्रगुजारी करती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमारी जो शुक्रगुजारी है ना ये भी पूरे दिल से होनी चाहिए। कैसे? पूरे दिल से। अगर हम शुक्रगुजारी करते हुए भी रियाकारी करेंगे तो वो शुक्रगुजारी कबूल नहीं होगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा सबसे पहली शुक्रगुजारी किसने गुजारी है? कोई बता सकता है? सबसे पहली शुक्रगुजारी जो थी वो बाप आदम के जो दो बेटे काइन और हाबिल, वो दोनों खुदा के हुजूर अपनी अपनी शुक्रगुजारियां लेकर आए। काइन भी अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर लेकर आए और हाबिल भी खुदा के हुजूर अपनी शुक्रगुजारी लेकर आए। यानी कि जो खुदा ने उनको बख्शा था अच्छी अच्छी नेमतें बरकतें खुदा के हुजूर वो लेकर आए कि खुदा हम ये तेरे हुजूर लेकर आए। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा ने हाबिल की शुक्रगुजारी को कबूल किया मगर काइन की शुक्रगुजारी खुदा ने रद्द कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी शुक्रगुजारी के अंदर दिलो जान नहीं था, उसकी शुक्रगुजारी के अंदर मोहब्बत नहीं थी, उसकी शुक्रगुजारी के अंदर वफादारी नहीं थी, उसकी शुक्रगुजारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेईमानी थी, रियाकारी थी। क्योंकि काइन जो चीजें खुदा के हुजूर लेकर आया था, क्योंकि काइन जो खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी लेकर आया था वो गली सड़ी थी, वो ऐसी शुक्रगुजारी थी जो खुदा को पसंद नहीं है।
तो मेरे चीजों में आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा के जो शुक्रगुजारी करें, जैसे भाई सलीम ने आज सब बहन भाइयों को, अहले इलाका, कलीसिया को, अपने खानदान को, खादमों को इकट्ठा करके की, तो ये शुक्रगुजारी जो है खुदा के जो मकबूल ठहराई जाती है। जब हम दिल से, बड़ा दिल करके ये सोचें यार 4 जी इकट्ठे हो जाएंगे तो की कराना, बड़ा मुश्किल हो जाए, तो फिर खुदा ऐसी शुक्रगुजारियों को कबूल नहीं करता। दिल बड़ा करना, हाबल की तरह अच्छी अच्छी चीजें खुदा के ज़रूर लेकर आए, अच्छा हदिया खुदा के ज़रूर लेकर आए, अच्छा नजराना खुदा के ज़रूर लेकर, दिल से, पूरे दिल से आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आपकी शुक्रगुजारियों को पसंद करता है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें, और जो कुछ पास नहीं है उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। एक दफा का जिक्र है कि 3 लोग थे, वो दुआएं करते थे, खुदा उन्हें सानू अमीर कर दे, अमीर कर दे, अमीर कर दे, असी अमीर होना चाहते। तो क्या हुआ, खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा कि जाओ इनसे पूछो इनको क्या चाहिए। तो खुदा का फरिश्ता एक शख्स के पास आया और उसने पूछा, हाँ भाई तू बड़ी दुआ कर रहे हैं, की चाहना? उन्होंने कहा जी मैं अमीर होना चाहना हूँ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। खुदा के फरिश्ता ने उनके घर दी सारिया चीज़ां सोने दी बना दी, टेबल वाल हाथ किया, उंगली की टेबल सोने का, कुर्सी वाल उंगली की, कुर्सी सोने की, बैड वाल उंगली की, बैड सोने का। उन्हें कहा सारा कुछ सोने का बन गए, इन्होंने वेच खा पी मौजा कर। उन्हें खुदा की शुक्रगुजारी अदा की थी, वो खुदा के दूर झुका और उसने खुदा की शुक्रगुजारी की। फिर वो दूसरे के पास गया, फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, हाँ भी तू की चाहना? उन्होंने कहा मैं भी अमीर होना चाहना। खुदा के फरिश्ते ने उसके घर की चीज़ों को भी सोने का बना दिया, कुर्सी, मेज, टेबल, बेड, बर्तन, जिस चीज़ की तरफ खुदा का फरिश्ता उंगली करता गया वो सोने की बनती। फिर जब तीसरे के पास गया उससे भी वही सवाल, हाँ भी तू की चाहना? उन्होंने कहा मैं भी अमीर होना चाहना। अब दोनों ने तो शुक्रगुजारी अदा कर दी, अब तीसरे की बारी आ गई। तो तीसरे के साथ भी खुदा के फरिश्ते ने वैसे ही किया, उसके घर की चीज़ें भी सोने की बना दी। तो उसने कोई शुक्रगुजारी अदा नहीं की, उसने कोई खुदा को सजदा नहीं किया। तो फरिश्ता उसके मुंह की तरफ देख रहा है। उसने कहा हाँ भाई अब क्या चाहिए, सब कुछ तो सोने का बना दिया। तो उस शख्स ने कहा ये जो उंगली है ना तेरी, ये जो ऐसे ऐसे करके तो चीज़ें सोने की बना रहा है, ये काट कर मुझे पकड़ा दे। अंदाजा कर ले कि अभी भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं खुदा को बहुत कुछ मुहैया कर देता है, लेकिन नाशुक्री उनके अंदर फिर भी रहती है। ये सारा कुछ तो दिन भी उन्होंने सोने का बनाया था, दूसरों ने खुदा की शुक्रगुजारी कर ली, मगर आपने क्यों नहीं की? अभी भाई पास्टर साहब दुआ कर रहे थे और उसमें 10 कोड़ियों का जिक्र कर, खुदा यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को जब शिफा दी तो एक वापस आया और उसने आकर खुदा की शुक्रगुजारी। खुदा यीशु मसीह ने पूछा क्या वो जो 9 बाकी थे क्या वो शिफा नहीं पा गए, क्या वो अच्छे नहीं हुए? तो अच्छे तो वो भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की। ऐसे भाई सलीम आज ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने मुनासिब जाना कि वो एक जो वापस लौटा, उसने आकर खुदा के कदमों में गिरकर सजदा किया और खुदा की शुक्रगुजारी की। हालेलुया। हमें भी अपनी लाइफ के अंदर शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। भाई सलीम ने बैठे बैठे हो सकता है कोई गीत ना गाया हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कोई गीत ना गाया हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो कोई शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की तंजीद करता है। हालेलुया। इसका मतलब है जिन्हें गीत गाएंगे ना सारे इन्होंने गाए ने, क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी इन्होंने कराई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबनों को और मुझे बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। फिर एक बार जोरदार तालियां बजाएं खुदा के पादर के लिए। बड़ा ही खूबसूरत कलाम। मेरे अजीज भाई बहनों, बेशक हम दुआएं करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।